Hello everyone, my name is Akash Vashne, Assistant Professor, Banaras University, Lucknow. In this video, I am going to discuss the binary codes. Okay, so binary codes means group of some symbol that is 0 and 1. It is called binary codes. Binary codes are classified into two categories: alphanumeric code and numeric code. In the alphanumeric code, we have numeric plus alphabet also, combination of alphabet and numeric value, that is from 0 to 9 in the alphanumeric code. For the example of alphanumeric code is ASCII code. Okay, what in the numeric code are classified into two category: weighted code and non-weighted code. Weighted code means it has position weight. For example, 8421 code, which is also called as 8421 code, which is also called as BCD code. BCD code means binary code decimal. Binary code decimal. This is the full form of BCD, binary code decimal. So 8421 is also called as BCD code, and non-weighted code do not have position weight. For example, access 3 code and gray code are the example of non-weighted code. These are the code we have to study here in our syllabus. 8421, access and gray code are there. Then we have discussing these three code only. Okay, so first code is 8421, that is also called as BCD code. So 8421. Okay, so firstly we have to represent the decimal digit. Decimal represent 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, here we can put 8421. It has a position weight, so we can write the decimal equivalent 8421 equivalent to decimal. So 0 is represented as 0 0 0, 1 is represented as 0 0 1, 2 is represented as 0 0 1 0, 3 is represented as 0 0 1 1, and 4 is represented as 0 1 0 0, 5 is 0 1 0 1, 6 is 0 1 1 0, 7 is 0 1 1 1, 8 is 1 0 0, 9 is 1. There is a very simple technique how you can write the equivalent. I will say 8421. You have to write 1. So you have to write 1. So you have to put 1 here and 0 0 here. Then you can add all the bit 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 1 1. Then the equivalent is 1. This is clear. Now if you write the equivalent of 2, इक्विवेलेंट टू 2, तो इक्विवेलेंट टू कैसे आपको मिलेगा? यू हैव टू पुट 1 0 and 2 becomes 1, 4 becomes 0 and this becomes 0. Then you can add all these 2. Okay, because this is 2 raised to the power 3, this is 2 raised to the power 2, this is 2 raised to the power 1, this is 2 raised to the power 0. So you have to suppose you have to write the 3 डेसिमल डिजिट 3 इन दी 8424. कैसे? तो 3 कैसे मिलेगा? 2 plus 1 3 मिलेगा. तो यू हैव टू पुट 1 हेयर, यू हैव टू पुट 1 हेयर एंड यू हैव टू पुट 0 0. देन यू कैन राइट दी equivalent of 3. You can see match with the table. Okay, so similarly you have to write the decimal equivalent 4. तो decimal equivalent 4 कैसे मिलेगा? अगर हम 4 की जगह 4 के पोजीशन वेट पर 1 लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. तो आपको क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा. अगर आपको 5 लिखना है तो 5 कैसे लिखोगे? 4 plus 1 5 होता है. इसका मतलब 4 की जगह 1 लिखना है, 1 पर 1 लिखना, बाकी सब पोजीशन बिट के हो जाएंगे, 0 हो जाएंगी. 6 कैसे मिलेगा? 4 plus 2 करके 6 मिलेगा. तो इसका 0 1 1 0 हो जाएगा. 6 समझना आ गया आपको? अगर आपको 7 लिखना है तो 7 कैसे मिलेगा? 4 plus 2 6, 6 plus 1 7. इसका ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 0 होगा. तो 7 लिख गए. 8 कैसे लिखेंगे? यू हैव टू पुट 1 हेयर, 0 0 0. 9 कैसे लिखेंगे?
8 + 1 9 होता है, तो 1 और ये 1 होगा, बाकी बिट्स क्या हो जाएंगे 0। तो आप इस तरीके से कैसे लिखेंगे डेसिमल डिजिट का इक्विवेलेंट, आप उस बिट को 1 लिखेंगे जिसको ऐड करने पर आपको डेसिमल कन्वर्जन मिल रहा हो। ओके, तो आप 842, in this way you will to convert decimal digit into 8421, that is BCD code. You will be remember the point that BCD code are of 4-bit number. Okay, 4-bit number, this is the 4-bit number, this is clear, 4-bit number. Now there are some non-valid BCD codes that are mentioned here, that is 1010, 1011, 1100, 1101, triple 10 and 4 times 1. These are the non-valid BCD code. You will put a star here. This is the main important point that we will remember, that non-valid BCD code, because decimal digits are from 0 to 9. If we have 10, 11, 12, 13, 14, 15, then we will not write like this 1010, 1011, 1100. For example, if you convert the 10 into BCD code, if you want to convert, suppose this is the example, and you have to convert 10 into BCD code. How you will convert, I will explain. 10 into BCD, तो 10 को BCD में कैसे करना है, तो यू हैव टू राइट द इक्विवेलेंट ऑफ 1. इक्विवेलेंट ऑफ 1 क्या है यहाँ पर, 001, तो 0001, 0 का इक्विवेलेंट क्या है, 4 टाइम 0, तो 0000, दिस इज द BCD कोड ऑफ 10. ओके, दिस इज क्लियर. Suppose this is the 2-bit number, or you will get the 8-bit number. Okay, if there is a 2-bit number, you will get the 8-bit number in the BCD form. Suppose if the k-bit number is there, if there is k-bit number is there, then the in the BCD you get how many bit, 4k bit. कितनी bit मिलेंगी आपको, 4 बिट. अगर आपके पास 3 बिट का नंबर है तो आपको BCD में कितनी बिट मिलेंगी, 4 3 12 बिट मिलेंगी. अगर आपके पास 4 बिट हैं आपकी डेसिमल में, तो BCD में कितनी बिट्स मिलेंगी, 4 4 16 बिट मिलेंगी. ओके, नाउ वी विल सी वन मोर एग्जांपल ऑफ 8421 कन्वर्जन, हाउ विल गेट. सपोज यू वांट टू कन्वर्ट 12, you have to want to convert 12 in the BCD, तो you have to write the equivalent of 1. equivalent of 1 कितना है आपका, 0001 है, और 2 का equivalent क्या है, 0010. दिस इज द conversion of decimal into BCD code. How many bit are there, 8 bit are there, or in the decimal 2 bit are there. So there is a relation between, if we have k bit, then we can get 4k bit here. Okay, this you have to put in the note, that if k bit decimal digit are there, then we can get 4k digit. Okay, it is clear. One more example we have consider for the conversion. Suppose you want to convert 24 into BCD number, तो you have to write the equivalent of 2. equivalent of 2 क्या होगा, 0010 होगा. 4 का equivalent क्या होगा, 0100 होगा. तो this is the BCD conversion of 24. okay, it is clear. Now we have example. You have to convert 43 into hexadecimal and BCD form. There is an example, you have to convert 43 in the hexadecimal and BCD. तो first we have to put first part. hexadecimal में कैसे करेंगे, 43 को डेसिमल है तो we have to divide the 43 by 16. तो 16 2 जा 32, remainder is 11. 16 0 जा 0, remainder is 2. So we can write the number in the upward direction 2. 11 is what, B in the hexadecimal form. So you have the answer 2B in the hexadecimal. The first part answer is 2B. okay, now you have to convert it into
नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू BCD फॉर्म। तो BCD फॉर्म में 43 को कैसे लिखेंगे, 4 का इक्विवेलेंट लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग टू 4 आप देखेंगे 8 4 2 1 क्या होता है, करस्पॉन्डिंग टू 3 क्या होता है। तो 43 का करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे कैसे लिखेंगे, 4 के करस्पॉन्डिंग कितना होता है 0 1 0 0, 3 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है 0 0 1 1। तो ये आपका क्या हो गया, BCD कन्वर्जन हो गया। अगर आपको इसको बाइनरी में कन्वर्जन करना होता तो आप कैसे कन्वर्ट करते बाइनरी में, अगर इसका आपको बाइनरी कन्वर्जन करना होता तो कैसे कन्वर्जन करते बाइनरी, तो आप कैसे करते, अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज बाइनरी कैसे कन्वर्जन करते हैं, डिवीजन प्रोसेस से करते हैं ना, तो डिवीजन प्रोसेस करके दिखाएंगे। 4 3 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 1। देन वी कैन अगेन डिवाइड 2 1 जा 2 एंड 2 0 जा 0, remainder is 1. Then 2 5 ja 10, remainder is 0. Then we can again divide 2 2 ja 4, remainder is 1. 2 1 ja 2, remainder is 0. Then again 2 0 ja 0, remainder is 1. Then we write the number in the upward direction. We can get 1 0 1 0 1 1. How many bits are there, 6 bits are there। फिर से मैं लिख देता हूँ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1। तो 6 बिट का आपको नंबर मिल रहा है बाइनरी में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1 0 0 1 1। तो ये आपका क्या है, बाइनरी कन्वर्जन है। BCD में आपको 8 बिट मिल रही है, बाइनरी में आपको कितनी बिट मिल रही है, 6 बिट मिल रही है। तो ये आपको एक की पॉइंट आपको याद रखना है कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन BCD एंड बाइनरी। BCD में आपको करस्पॉन्डिंग टू 2 बिट, डेसिमल 2 बिट के करस्पॉन्डिंग आपको 8 बिट मिलेंगी, बट बाइनरी में ऐसा नहीं है कि आपको 8 बिट ही मिलेंगी। वो डिपेंड करता है डिवीजन प्रोसेस से आपको कितना आंसर मिल रहा है। ओके, तो दिस इज अबाउट द 8421 एंड BCD कोड। नाउ अनदर कोड इज एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड को हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। It is also called as self complementary code. We will discuss what is the meaning of self complementary code in the previous topic. Okay, firstly we will discuss what is access 3 code. Access 3 code means BCD code plus 3. First we have to write the BCD code and we have to add the 3. So 3 is what, 0 0 1 1. We have to add 0 0 1 1 in the BCD. Okay, then we can get the access 3 code. Suppose you have to write the 0 access 3 कोड। तो 0 का क्या होता है, 0 0 होता है पहले BCD में, इसमें हमें क्या ऐड करना है, 0 0 1 1 ऐड करना है। तो ऐड करेंगे 0 + 1 1, 0 + 1 1 0। तो 0 का क्या हो गया आपका एक्सेस 3 कोड, ये हो गया 0 का एक्सेस कोड क्या हो गया 0 0 1। अगर हमें 1 का लिखना है, तो 1 का अगर हमें लिखना होता तो 1 का BCD कोड क्या होता है, 1 का अगर हमें BCD कोड लिखना होता तो क्या होता है 0 0 0 1। ये 1 का BCD कोड होता है। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है। तो 3 कैसे ऐड करेंगे, 0 1 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 0, तो कैरी 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा 0, कैरी क्या हो जाएगा 1, 1 + 0 1 दिस। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 1 0 0 ऑफ 1। तो एक्सेस 3 कोड ऑफ 1 इज 0 1 0 0। एक और मैं एग्जाम्पल से आपको बता दे रहा हूँ, 2 के एग्जाम्पल से। ठीक है, 2 का एग्जाम्पल है। 2 का आपका क्या होता है BCD कोड क्या होता है 0 0 1 0। ये 2 का होता है। इसमें हम क्या ऐड करेंगे 0 0 1 1 ऐड करेंगे। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 0, कैरी 1, 1 + 0 1 0। तो आपका एक्सेस 3 कोड क्या आ जाएगा 0 1 0 1। ओके, एक और एग्जांपल अगर आपको करना है, मैं कोई 9 का एग्जांपल ले लेता हूँ, डेसिमल ऑफ 9। डेसिमल ऑफ 9 कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको BCD 9 का पता चाहिए। BCD 9 का क्या होता है, आप 1
0 0 1 होता है। इसमें आप क्या ऐड करेंगे, 0 0 1 1 ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1 + 1 क्या होता है, 0 कैरी 1, 1 + 1 क्या होता है, 0 कैरी 1, 1 + 0 1 1। तो x3 कोड ऑफ 9 इज 1 1 0 0। तो इस तरीके से आप x3 कोड कैसे निकालेंगे, BCD कोड में आप +3 ऐड करेंगे। +3 मतलब 0 0 1 1। BCD में क्या ऐड करेंगे, 0 0 1 1। इन दिस वे विल गेट दी x3 कोड। और x3 कोड को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड भी बोलते हैं। इट इज क्लियर टू यू, ओके। नाउ we see how what is the meaning of self complementary code। self complementary code का क्या मतलब है, if the ninth complement of decimal digit, if the ninth complement of decimal digit it equals to the ones complement of code corresponding to it is called self complement। कहने का मतलब ये है कि अगर 9 कॉम्प्लीमेंट अगर हम किसी भी डेसिमल डिजिट का निकालेंगे तो वो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोड के इक्वल होता है, तो वो क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होगा। अब 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज करो हमें 4 का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 4 का 9th कॉम्प्लीमेंट मतलब 4 को 9 से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 4 का क्या लिखेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो 4 का वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सपोज करें 4 का पहले कोड क्या होता है, 0 1 1 होता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 बिकम्स 1 0 0 0। तो 1 0 0 डेसिमल में क्या होता है, 5 होता है। तो इसका मतलब क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 and 9th complement of 4 is equal, it says what, self complementary code। ओके, ये आपको क्लियर हो गया सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड क्या होता है, ठीक। now there is another example, this is a very good example here। state of 12 bit register 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1। what is its content if it represent, first part is if 3 decimal digit in BCD code, if 3 decimal digit in BCD code, और सेकंड पार्ट इज 3 डेसिमल डिजिट इन x3 कोड, और थर्ड पार्ट इज इट इज इन दी बाइनरी फॉर्म। ओके, तो आपको डेसिमल फॉर्म में आंसर देना है और BCD में। पहला पार्ट कह रहा है कि जो आपको कोड दिया है वो BCD में है। हम 1 0 0 का BCD कोड लिखेंगे। तो 1 0 0 का BCD कोड क्या होता है आपका, 1, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1। तो 1 0 0 का एक्सेस BCD कोड क्या होता है, 8 होता है। और 1 0 0 1 का BCD कोड क्या होता है, 9 होता है। 0 1 1 का एक्सेस BCD होता है। तो 8 9 7 क्या हो गया आपका, डेसिमल डिजिट रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो 8 9 7 इज योर आंसर। ओके, अब x3 लिखना है। तो x3 अब हमें ये हमें डेसिमल में पता है, x3 में रिप्रेजेंट है, x3 में लिखा है। तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा 3। सब्ट्रैक्ट 3 किस में से करना होगा, रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से। तो 3 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 3 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 3 गया 5। तो 5 6 4 इज दी करेक्ट आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। अब बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, किस में रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। तो बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले आप चाहें तो वही इक्विवेलेंट 2⁻0 2⁻, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट अगर हम 1 0 0 इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्सा में भी हमें क्या करना होता है, 4 4 की ग्रुपिंग करनी होती है। तो 4 4 की ग्रुपिंग करने पर हमें क्या मिलेगा, 8 9 7 ही मिलेगा हेक्साडेसिमल में भी। तो हेक्साडेसिमल में हमें नंबर पता है, उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दिस इज व्हाट 16⁻0, this is 16⁻1, this is 16⁻2। इक्विवेलेंट बिट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे। तो 16⁻2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्लस 16⁻1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, प्लस 16⁻0 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, और ऐड कर देंगे तीनों को। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2199। दिस इज दी बाइनरी नंबर। ओके, तो ये क्लियर हो गया। नाउ दे
heading that is sequential code. That is sequential code. Sequential code means if the difference between successive code is equals to 1. If the difference between successive code is equals to 1 is called sequential code. For example 4 equals to 4 का बाइनरी बिट क्या होता है 0 1 0 0 होता है. 5 का क्या होता है 0 1 0 1 होता है. तो यहाँ पर देखो सक्सेसिव बिट का बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 1 ही तो आ रहा है. तो 1 आ रहा है. तो ये क्या है सिक्वेंशियल कोड है. तो इसका एक एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है 8421 और एक्सेस 3 कोड आर दी एग्जांपल ऑफ सिक्वेंशियल कोड. तो अगर कोई पूछे व्हाट इज दी हु इज दी सिक्वेंशियल है एक्सेस 3 कोड एंड 8421 इज दी सिक्वेंशियल कोड. नाउ यूनिट डिस्टेंस कोड. यूनिट डिस्टेंस कोड क्या होता है इफ द नंबर ऑफ बिट पोजीशन इज डिफर बाय 1. if the number of bit position is differ by 1 bit is called यूनिट डिस्टेंस कोड. इसका एग्जांपल क्या है ग्रे कोड. ग्रे कोड में भी आपको अभी समझाऊंगा व्हाट इज ग्रे कोड. फॉर एग्जांपल 7 का अगर हम लिखें 7 का क्या होता है 0 1 1 1 होता है. 8 का क्या होता है 1 0 0. तो इफ द नंबर ऑफ बिट पोजीशन 1 तो आपको 0 क्या हो रहा है 1 हो रहा है. 1 क्या हो रहा है 0 हो रहा है. 1 क्या हो रहा है 0 हो रहा है. 1 क्या हो रहा है 0 होता है. डिफरेंस क्या हो रहा है हर एक बिट के बीच का 1 हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है यूनिट डिस्टेंस कोड. यूनिट डिस्टेंस कोड का बेस्ट एग्जांपल क्या है ग्रे कोड है. तो अब ग्रे कोड हम लोग समझते हैं कि ग्रे कोड होता क्या है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ग्रे कोड हेडिंग डालेंगे. ग्रे कोड पहले क्या करेंगे 4 बिट बाइनरी कोड लिख लेंगे. ठीक है. तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया. हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को B3 कह दिया है, फिर B2 कह दिया, फिर B1 कह दिया, फिर B0 कह दिया, G3 G2 G1 G0 कह दिया है. ठीक है. तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है जब भी हम बाइनरी से ग्रे कोड को कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कॉपी करना है. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कॉपी कर लेंगे. उसके बाद हम देखेंगे इफ़ देयर इज अ चेंज. अगर कोई चेंज होता है तो आप 1 लिखेंगे. अगर देयर इज नो चेंज यू कैन टू राइट ओनली 0. ओके. तो कैसे अब देखते हैं ये चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ. फर्स्ट वी कैन सी 0 को हमने कॉपी कर दिया. देन वी कैन सी 0 से 0 पर जाएंगे मतलब B3 और B2 बिट को देखेंगे तो 0 से 0 पर तो देयर इज नो चेंज तो आप 0 लिखेंगे. फिर 0 से 0 फिर हो रहा है फिर देयर इज नो चेंज तो 0 लिख लिया. फिर 0 से 0 देयर इज नो चेंज. इसका मतलब ग्रे कोड क्या हो गया 0 का 0 0 0 ही हो गया. अब सपोज करें कि 0 0 1 का देखना है तो हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कॉपी कर लिया 0 ही हो गया. फिर 0 से 0 को देखा कोई चेंज नहीं हो रहा है तो 0 ही लिख लिया. फिर 0 से B2 और B1 बिट को देखो 0 0 है नो चेंज 0. फिर 0 से 1 हो रहा है चेंज हो रहा है तो 1 लिख लिया. चेंज अगर है if there is a change from one bit to another bit then you have to write 1 only. if there is no change you have to write 0 only. suppose you have to see last 1 1 1 1 1 1. इसका आपको क्या लिखना है ग्रे कोड लिखना है. कैसे लिखेंगे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर. फर्स्ट यू हैव टू कॉपी 1 कॉपी कर लिया. यू हैव टू सी 1 से 1 जा रहे हैं तो 1 से 1 कोई चेंज हो रहा है नो चेंज हो रहा है तो 0 लिख लिया. फिर आपने देखा 1 से 1 ये चेक किया कोई चेंज हो रहा है 1 से 1 नो चेंज हो रहा है 0 लिख लिया. फिर आपने फिर यहाँ पर चेक किया 1 से 1 चेंज हो रहा है नहीं हो रहा तो आपका क्या हो गया ग्रे कोड क्या हो गया 1 1 1 का 1 0 0 हो गया. एक और मैं एग्जांपल आपको क्लियर कर देता हूँ. यहाँ पर सपोज करो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 0 1 1 ले लेते हैं 1 0 0 1 ले लेते हैं. ठीक है. तो आप क्या करेंगे फर्स्टली आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कॉपी करेंगे. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कॉपी कर लिया 1 से 0 चेक किया देयर इज अ चेंज तो आपने कर दी 1. यस चेंज हो रहा है तो 1 लिखना है. फिर 0 से 0 नो चेंज 0. फिर 0 से 1 देयर इज अ चेंज 1. तो आपका क्या हो गया 1 0 0 1 का क्या आ गया 1 1 0 1 हो गया. एक और मैं एग्जांपल बता देता हूँ ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है. सपोज 1 1 0 0 1 1 0 0 इसको हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है. कैसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आपने कॉपी कर लिया. देन यू हैव टू कंपेयर 1 and 1 नो चेंज देन यू हैव टू राइट 0. 1 and 0 देयर इज अ चेंज यू हैव टू राइट चेंज 1. 0 and 0 नो चेंज 0. तो इसका क्या हो गया 1 0 1 0 हो गया. अब कोई सा भी एक आप रैंडमली आप कोई सा भी किसी का भी कन्वर्ट कर लें. सपोज एक और 1 मोर एग्जांपल वी हैव टू टेक
one more example. What example I will take? 1101, 1101. Okay, this is the last. We have to convert the into gray code. uh, One most significant bit वन ऐसे होगी, कॉपी हो गया, ठीक. Then we can to see 1 and 1, there is no change, 0. 1 and 0, there is a change, 1. 0 and 1, there is a change, 1. So answer is 1011. In this way we can convert binary code into gray code. Okay, now how we can convert, there is another rule how we can convert binary code into gray code. We can say, so if there is v2 v1 v0 are the binary bit, and from v3 v2 v1 को हमें चेंज करना है ग्रे कोड में, तो क्या करना होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो v3 है उसको आपको एग्जैक्टली कॉपी करना है इन द प्लेस ऑफ g3, एंड यू हैव XOR b3 एंड b2. सपोज g3 तो आपका v3 के बराबर हो गया, अब आपको g2 निकालना है, तो g2 कैसे निकालेंगे, b3 एंड b2 का क्या ले लेंगे, XOR ले लेंगे. XOR में आपको in the coming video I will explain the logic gate, where I will explain what is XOR gate. So from where you have to learn what is XOR. For right now you have to remember that there is something that is XOR gate. After XOR gate we can get the resultant answer. Okay, so for g2 you have to XOR v3 and v2. Similarly for g1 you have to XOR g2 for g1 you have to XOR v2 and v1, or for g0 you have to XOR v1 and v0. Okay, here we can see this is the second method for conversion of binary code into gray code. First you have to write the v3 for g3, you have to put g3 equals to v3. It is clear to you. Now for g2 you have to XOR b3 XOR b2. Okay, this is clear. Now for g1 you have to XOR b2 XOR v1. Okay, और g0 के लिए किसका XOR करेंगे, v1 XOR v0. Okay, this is the XOR. Now you have to convert gray code into binary code. You have to do the reverse process. So how you can convert gray code to binary code? Now we'll see how. Firstly we will erase this writing. Now you have to convert gray code into binary code. So you want to convert g3 g2 g1 g0 into b3 b2 v1 v0. So how you will see, now you will see, suppose firstly you have to copy, you have to put g3 g2 g1 g0 here. You have to copy v3 here. Similarly g3 equals to v3. Okay, now you have to XOR g2 XOR b3 and write the answer here. Okay, write the answer here. You have to XOR right now like this way. You have to XOR b3 with g2 and put the answer of b2. Okay, in this way you have to convert the gray code into binary code. Now I will write here. Here you will see b3 equals to g3 and b2 equals to b3 XOR g2. Now for v1 you have to XOR v2 with g1, and for v0 you have to XOR v1 with g0. Okay, in this way you will convert the gray code into binary code. So this is about the video. We will revise what we can have learned in this video. In this video we have learned about the binary codes. Binary codes are classified into two categories. First is alphanumeric and alphanumeric. Example is ASCII code, which are not in our syllabus. Numeric code are classified into two categories: weighted code and non-weighted code. Weighted, for example, is 8421
BCD code, and the non-weighted code are access 3 code and gray code. Okay, in between these code we have learned about the cell complementary code and unit distance code and sequential code. So